Yes. Start the session. Good morning, everyone. How are you all? Good morning, sir. We are fine, sir. What about you? Fine, sir. What about you? I'm also fine. Thank you. But in our last session, we discussed all the questions of get going section from the chapter number 9. So first of all, I would like to confirm that is there any query, any question from the get going section? Is there any question No, you sir. want to ask? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. Let me open the book. Yes, sir. सर बुक दिखने लगी। सर बुक दिखने Yes, लगी। sir. Okay. Don't worry, it will be visible to you all. So already we have discussed all these questions in our last class, and in this section we are supposed to start the vocabulary junction. But as I told before the starting the session, that I think this is the easiest topic of your book. I hope Yes, sir. you all know about the antonym and synonym. How many know about the antonym and synonym? What Yes, are sir. antonym? What are synonym? Yes, Who sir. knows the concept of antonym and synonym both? Show me your hand. Antonym means क्या होता है? मुझे पता है there are some students they don't familiar with the words antonym and synonym. But ऐसा जो concepts है ना, वो किसी और अलग नाम से जानते हैं. मैं अभी नाम नहीं लूंगा. तो एंटोनिम सिनोनिम्स कितने लोग फेमिलियर हैं, कितने लोग नहीं फेमिलियर हैं? आई कैन अंडरस्टैंड. अच्छा, so the topic for this section, the topic for today would be the antonym and synonym. And what are antonym, what are synonyms? I hope आप ही लोगों से मैं पूछूंगा तो बता ले जाएंगे. तो अच्छा, how many familiar with the opposite words? सुषमा, do you familiar with the opposite words? Opposite words आपको पता है कि नहीं क्या होते हैं? बेटा down your hands everybody please. निहारिका वर्मा, आप अपना माइक ऑन करिए. Yes, sir. बेटा do you familiar with the opposite words? What are opposite words? Do you know or not? Antonym को opposite word कहते हैं. Yes, antonyms are also known as the opposite words. So what is the opposite? What is the antonym of cold? Sir, hot. Sir, hot. Okay. Okay. Everybody are telling. Actually, I asked from Niharika. Akanksha, you have to tell. Akanksha, start your mic. Yes, What is the antonym of big? Sir, What is the antonym of big? Sir. आकांक्षा पांडे से मैंने पूछा है. What is the antonym of, what is the opposite of big? आकांक्षा पांडे, बड़ा का अपोजिट क्या होगा? बेटा बड़ा का अपोजिट क्या होगा? आकांक्षा इधर उधर क्यों देख रही हो? आपको नहीं पता क्या होता है अपोजिट का मतलब? इसीलिए मैंने कुछ ऐसे बच्चों से पूछा कि जिसके ऊपर मुझे डाउट था. आकांक्षा को अभी शायद नहीं फेमिलियर है. चलिए कोई बात नहीं, जिसको नहीं पता है वो एक बार सीखेंगे. अपोजिट में से एक तरीके से होता है उल्टा अर्थ. अगर आप ईस्ट की बात कर रहे हो तो वेस्ट, अगर आप फायदे की बात कर रहे हो तो दूसरा नुकसान की बात कर रहे हो. इसी तरीके से हॉट का किसी ने बताया कोल्ड, या कोल्ड का हॉट बताया. yes. इसी तरीके से बिग का क्या होगा आकांक्षा? इसमा. मैं आकांक्षा से पूछ रहा हूँ स्वर्णिमा, और उसको बुला लोगे, बुला के बगल में बिठाओगे तो वो भी बताएगी क्लास फर्स्ट में पढ़ रही है. बट आप जानबूझ के नहीं बोल रही हो. इट इज नॉट ए गुड थिंग. आकांक्षा पांडे, आई विल रिमूव यू इफ यू आर नॉट टेलिंग. एम आई ऑडिबल टू यू? पहले आप ये बताइए क्या मेरी आवाज आप तक जा रही है? आकांक्षा? Yes, नहीं, आकांक्षा से मैं पूछ रहा हूँ. आकांक्षा, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ी है? सर क्या? मेरी आवाज आपको जा रही है, सुनाई पड़ रहा है?
Yes, sir. तो बिग का अपोजिट क्या होगा? Sir, बिग मीन्स होता क्या है? बिग मीन्स होता क्या है? sir, big. BIG बिग। Sir, big means बड़ा. बिग का अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट बताइए। Sir, small. हाँ, तो इतना देर से मैं पूछ रहा था, क्या कर रही हो? चलिए ठीक है, शायद आपको सुनाई नहीं पड़ रहा था। चलो कोई बात नहीं। उनको समझ में आ रहा था तो फिलहाल आकांक्षा को भी पता है कि व्हाट आर द अपोजिट्स, व्हाट आर एंटोनिम्स, तो इट इज अ गुड थिंग। तो बहुत जल्दी से ये टॉपिक क्लियर होगा आई थिंक। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द स्टोरी। देयर इज सम ऑफ द लाइंस that has been taken from the story. The Amazon originates from the Andes Mountains and the drains into the Atlantic Ocean. It is so wide that similar to a sea, it would be impossible to see one river bank from the other. Now, what you have to observe here, there is another word for the ocean is sea. ओशियन में भी क्या होता है? एक तरीके से महासागर, समुद्र, जो भी आप कहते हैं। सी में भी समुद्री होता है, ठीक है। इज ए सिनोनिम फॉर द वर्ड ओशियन, यानी सी आप बोले या ओशियन बोले। जैसे आप लोग के कई लोग का नाम दो होते हैं ना, अनुप्रिया का घर का नाम है पल्लवी, तो पल्लवी बोले या अनुप्रिया बोले, हम एक ही पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं। इसी तरीके से आप लोगों में से भी किसी का नाम दो नाम है घरों पे, मेरा भी 2 नाम है, एक स्कूल वाला, एक घर वाला। तो इन द सेम वे, तो दैट मीन्स कि अनदर वर्ड फॉर द पर्टिकुलर वर्ड, that would be having the same meaning, तो that would be called the synonyms। फिलहाल ये बताने की जरूरत नहीं, आप सभी को आता होगा पहले से ही। क्यों? synonyms तो आप लोग लिखते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ से ही, हर एग्जामिनेशन में होते हैं। सो अभी क्या करना है, जस्ट यू ऑल नीड टू टेल द synonyms of the different words. necessary means क्या होता है? आवश्यक। कंपल्सरी होता है। सर बहुत जरूरी, नोटिस करना, ऑब्जर्व, आवश्यक सर, आवश्यक। ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व आप करते हैं या नोटिस करते हैं, बात देखिए सर ध्यान से देखना, सर नोटिस करना सर, ध्यान टू से। केयरफुली। तो both are having the similar meaning. The same Yes, way sir. you talk about the Sir, wide wide मतलब सर वाइड में चौड़ा, सर चौड़ा सर ब्रॉड, यस सर। सर चौड़ा। ब्रॉड मतलब भी आपका चौड़ा ही होता है। सिमिलर मतलब बिल्कुल उसी तरह, आप जैसे आप कहते हैं इट इज द सिमिलर टू दिस, तो अलाइक जैसा, सिमिलर की जगह पे यूज किया जा सकता है, ठीक है। कि जैसा एक कह सकते हैं। यस सर। So these are the synonyms for each other. So this is all about synonyms. तो अभी synonym का एक कॉन्सेप्ट था, तो आई होप ये कंप्लीट हो गया, आप सभी को पता होगा। पता कि synonym से रिलेटेड किसी को कोई कंफ्यूजन कि synonym क्या होते हैं? अभी एक्सरसाइज है, नो सर, synonym से अभी हम डिस्कस करेंगे। नो सर। The next topic is the antonym. Antonym शुरू में ही मैंने पूछा, कई सारे बच्चों से लोगों ने बोला कि antonym is the another name of the opposite words. That means opposite words का क्या मतलब करते हैं? On the other hand, antonyms are the word that have the opposite meaning, जो कि उल्टा अर्थ रखते हो। अगर आप अपार्ट की बात करें तो यानी अपार्ट मतलब अलग अलग मतलब, और टुगेदर मतलब एक साथ। यस सर, यस सर। अपार्ट मतलब अलग, टुगेदर मीन्स एक साथ। बट वहीं पे आप बात करते हैं चीप, एक साथ। दिस इज वेरी चीप, बहुत ही सस्ता, महंगा। और सस्ता का उल्टा महंगा। यस सर, तो इन द इंग्लिश महंगा। चीप का जो अपोजिट होगा दैट इज द एक्सपेंसिव। इसी तरह सिंपल में साधारण, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। सर कठिन, यस सर। में डीप या शैलो, गहरा। सर गहरा, आपका गहरा, इसका अपोजिट होगा शैलो, ठीक है। पिछला, चलो सर जो गहरा नहीं। यस सर। तो अभी क्या है, हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज के पार्ट पे आ गए हैं। सर, होमवर्क मुझे लगता है कि शायद आप लोग ये एक्सरसाइज मैथ का सिनोनिम अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। और एक काम करता हूँ ना,
आप लोग चाहे तो वीडियो चाहे ऑन रखें या बंद करें। एक बार इसका ए का देखिए, मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं, पहले समझ लीजिए हाउ यू ऑल नीड टू सेंड योर आंसर। फर्स्ट का 1, ये इसको कर दीजिए 2, मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दे रहा हूं। You all need to send your answer in my chat box। A का 1 या A का 2, A का 4, जो भी आंसर आपका है, B का 1 या B का 2 या B का 3, ठीक है। You all need to send in this way। Yes, एक ही साथ में भेजना, अलग अलग नहीं। एक ही में A1 मान लीजिए किसी का है, B का किसी का 4 है, C का किसी का मान लीजिए 3 है, D जो भी है, मतलब आप लोग इसी तरीके से ABCDE पांचों के आंसर्स आप लोग मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेजिए। एक ही बार में आना चाहिए, अलग अलग नहीं। जल्दी से भेजिए। yes sir. यस सर। आई वांट टू सी दैट कि हाउ मेनी नो। इसका मीनिंग मैं बता दे रहा हूँ। डिजायर मीन्स चाहना, नॉटी मीन्स शरारती, हार्ड मीन्स कठिन, हैप्पी मीन्स खुश, ग्रेट मीन्स महान, डिफिकल्ट मीन्स कठिन, चीयरफुल मतलब एक तरीके से आप कहें। सर उसका मतलब क्या होता है? क्या सर चीयरफुल मतलब क्या होता है? एक तरीके से आप सर कह सकते हैं चीयरफुल। चीयरफुल मतलब एक तरीके से आप सर क्या? सिनोनिम ऑफ हैप्पी, खुश होना, चीयरफुल, ठीक है। yes sir. yes sir. डिजायर मतलब वंडरफुल, शानदार, विश मिस इच्छा या चाहना, मिशीवियस मिस थोड़ा सा शरारती। अब मैं सारा बता दूंगा तो आप लोग का वोकैब कहाँ पे चला गया, आज तक आप लोगों ने क्या सीखा है, इतनी सारा मीनिंग आपको बताना पड़ेगा। yes sir. बहुत जो डिफिकल्ट हो एक बार बता दो, बात अलग है। आप रिसीव सम ऑफ द आंसर्स। बेटा दिव्या एक एक करके मुझे नहीं चाहिए, मैंने आपको फॉर्मेट बोला है। तनिष्का मैंने आपको फॉर्मेट बोला है, ABCD पांचों के आंसर एक साथ करके भेजिए। इंटर करेंगे तो तुरंत नेक्स्ट हो जाएगा, इंटर नहीं करना है। आप एक ही लाइन में मतलब A का, B का, C का ऐसे करते जाए। इंटर करेंगे तो तुरंत ही सेंड हो जाएगा। It's a very easy. I hope that everybody would be sending the correct answer. नोटी मतलब शरारती। I have received many answers. Let us check that how many have sent the correct answer. बेटा क्या किया है? Sir, I have sent. शालिका चतुर्वेदी, स्टार्ट योर माइक बेटा। आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। किसी के बर्तन धुलने की आवाज आ रही है, प्लीज अपना माइक बंद करें। अमन वर्मा आपके यहाँ से जब आपकी बारी आएगी तब आप माइक ऑन करिएगा। घर में काम तो नहीं रोका जा सकता। अमन वर्मा प्लीज म्यूट योरसेल्फ बेटा। Whenever I yes sir. have to start there is a noise from your surrounding. But I have received the answer from Sanika Chaturvedi. जो सानिका का आंसर है मुझे फिलहाल वो रॉन्ग लग रहा है। क्या है अभी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कितने लोग का क्या क्या भेजा है, वो भी मैं बताता हूँ। और ऐसे कैसे हो गया, थोड़ा सा सानिका से नहीं उम्मीद थी। डिजायर मीन्स क्या होता है? चाहना, और ऑब्वियस सी बात है विश मीन्स भी चाहना। सर इच्छा, सर्विस, ठीक है, इच्छा जो भी आप कह रहे हैं। सर्विस। Naughty is the similar to the mischievous. yes sir. Yes sir.
Difficult. Happy is cheerful. Great is Cheerful. Wonderful. वंडरफुल यानी Sir, I am so discouraged. यहाँ पे सब मिला के C D E A B C D E A B C D E A B होना चाहिए. But what you all have sent your answer? सानुका ने A को 3 से मैच किया है, B को 4 से मैच किया है, C को 5 से मैच किया है, D को 1 से मैच किया है. पूरी तरीके से गलत है, सारे का सारे गलत है. मुझे लग रहा है कि कहीं पे कंफ्यूज थी, नहीं तो ये 5 के 5 शानुका फिलहाल नहीं गलत करती. निहारिका की तरफ से जो आया है 4 A B C नहीं 4 5 1 2 3 4 A का 4 ठीक है, B का 5 ठीक है, C का 1 सही है, D का ठीक है. 4 5 1 2 3 निहारिका वर्मा का 5 सही है, तनिष्का का भी 5 सही है, अनुप्रिया का भी 5 सही है, अनिल मौर्य का भी 5 सही है, अतुल चौहान ने फर्स्ट का सी लगाया है. डिजायर का वंडरफुल नहीं, डिफिकल्ट अच्छा इन्होंने उल्टा कर दिया है. डिफिकल्ट का सी. अच्छा 1 2 3 4 5 ठीक है, 4 5 1 2 3 ठीक है, इज ऑल्सो करेक्ट. शानिका आई थिंक शानिका इज नॉट एक्टिव एक्चुअली. आई शानिका आपका 5 का 5 गलत है, कैसे आपने भेजा? माइक ऑन करिए. 929. सर मैंने वर्ड को लिख के भेजा है सर. इस तरह से जो लिखना था वो सर मुझे कुछ में नहीं आया था, तो सर मैंने आपके व्हाट्सएप नंबर पे सर वर्ड का वर्ड लिख के भेजा मैं है. व्हाट्सएप नहीं चला रहा हूँ. इट इज नॉट द राइट वे. तो सर मुझे ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उसको भेजना होगा. आपने जो भेजा है A का 4 आपने जो लिख के भेजा है, और ये कहना मैं आपको समझा रहा हूँ A का 3 B सर का 4 ए C का सर 5 मतलब सर D का ये 2 लिख के भेजा है. व्हाट्सएप में नहीं चला रहा हूँ, इसलिए व्हाट्सएप वाला आंसर व्हाट्सएप जब चलाऊंगा तब देखूंगा. ठीक है. डिजायर का भी दिव्या ने लिखा सर है. ये राइट साइड वाली लाइन डिफिकल्ट हैप्पी का लेफ्ट साइड ग्रेट का वंडरफुल. बाकी सारे बच्चों ने लगभग सही किया है. तो कहाँ इस तरह से. A का 3 इन्होंने सचिन चौहान ने भी लिखा है. A का 3 B का 5 A का 4 है बेटा, B का 5 है, E का 4 इन्होंने लगाया है. ग्रेट का विश लिखा है. सचिन चौहान के 2 रॉन्ग है. बाकी सौरभ का भी सारा सही है, अमन वर्मा का भी पूरा सही है, अतुल चौहान का भी पूरा सही है, अनिल मौर्य, अनुप्रिया, तनिष्का, निहारिका, दे ऑल आर करेक्ट. Divya also has sent the correct answer. Now move on the next question. Find the synonyms of these words from the story. Nibble means सर क्या जो बताएगा? Sir, antonyms. Sir, antonyms find करना है. हाँ. What is the antonyms? What is the opposite of nibble? The first of all we have to tell what is the meaning of nibble. Sir, nibble. क्या होता है? आप सर ईट है. रैट वाली बात आई थी कि जल्दी जल्दी सर निबल में कुतरना. वो कुतरना. खा जाना, काट जाना. निबल आपको एक वर्ड आया था ना? यस सर. हाँ. Sir, निगलना. Sir, सर sir, गोबल अपसेलो. Sir, गोबल. क्या sir, कुतरना? गोलब अपसेलो. नहीं. Sir, मगरमच्छ में था. क्या? Sir, मगरमच्छ नहीं सर, एनाकोंडा में. तो निबल यस का एनाकोंडा में. गोबल आप लोगों ने बताया. इट इज द अपोजिट. इट इज Sir, द निबल. यहाँ पे लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा. आप इसको सॉलो भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है. कुतर के खाने के Yes, बजाय सीधा सीधा हड़प जाना, निकल जाना. You can write the answer of this. Now, what is the meaning of invisible? Invisible अदृश्य. क्या होगा? सर अदृश्य होना. Sir, सर visible. अदृश्य.
हाँ, तो सर, what is the अलग opposite of invisible? सर अलग भी होगा। सर विजिबल होगा सर, इनविजिबल आपका का। आयन आपका जो प्रीफिक्स यूज करके ही विजिबल को इनविजिबल बनाया गया है। आपका विजिबल को आयन प्रीफिक्स यूज करके इनविजिबल बनाया गया, तो द अपोजिट ऑफ इनविजिबल वुड बी द विजिबल। इनविजिबल मतलब अदृश्य, विजिबल मतलब जो देखने योग्य हो, जो दिखाई पड़ रहा हो। कॉमन यानी कि साधारण, जो हर जगह हो, सामान्य हो। तो व्हाट इज द अपोजिट ऑफ कॉमन? सर यूनिक। सर सिंपल। यूनिक। सिंपल नहीं होगा। सिंपल मीन्स होता है Yes, sir. साधारण, और सिंपल का अपोजिट जो साधारण का उल्टा होता है वो होता है जटिल। यस सर। जटिल यानी सर, आप कभी यहाँ पे आपको आया तो हार्ड। सिंपल का अपोजिट सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आ रही है। आपको नहीं जा रही होगी। सिंपल को कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लिखा गया ना, दिस इज द सिनोनिम। सर साधारण नहीं होगा, सर सामान्य। सर यूनिक। बेटा कॉमन का साधारण, एंटोनिम्स। कॉमन मीन्स होता सर है यूनिक। सुनिए, अगर आप लोग बोलते रहेंगे तब तो हो चुका। अब जिसको बताना था एक बार बता चुका, अब जब मैं बोला करूँ तो शांत हो जाया करिए। कॉमन मतलब साधारण सामान्य होता ही है, तो कॉमन का सिंपल थोड़ा होगा। बोला जाता है ही इज अ कॉमन मैन, ही इज अ सिंपल मैन, बोथ आर द हैविंग द सिमिलर। बहुत एग्जैक्टली सिमिलर तो नहीं बोलेंगे, बट इट सीम्स इट्स लुक्स लाइक अ सिमिलर मीनिंग। तो बहुत ही सामान्य आदमी है, बहुत ही साधारण आदमी है, मतलब कॉमन मतलब जो हर जगह हो, उपलब्ध हो। तो आप एचसीएफ निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सब में हो। यस सर। सब में ना हो, Yes, सब sir. हो, अनोखा हो, उसको बोलेंगे जो सामान्य है वो हर जगह रहेगा। यूनिक। तो इसका आपको एंटोनिम लिखना है, सिनोनिम नहीं लिखना है। तो एंटोनिम यानी अपोजिट, तो कॉमन का अपोजिट होगा यूनिक। रियलिटी, रियलिटी का अपोजिट क्या होगा? व्हाट इज द अपोजिट ऑफ रियलिटी? सर कहा जाता ना यही रियलिटी है, यही वास्तविकता है, सर यही सच सत्य। है। सर रियलिटी का हिंदी होगा सत्य। सर सच है, सही। वास्तविकता है। सिनोनिम Yes, sir. हो गया। तो रियलिटी का अपोजिट क्या होगा? जो सच सर रहता है अनरियलिटी। उसका झूठा नहीं होगा। तो ट्रुथ का तो सच का झूठा तो हो जाता है, लेकिन ये रियलिटी यानी वास्तविकता, जो वास्तविकता ना हो, जो कहीं ना कहीं। सर अनरियलिटी। नो नो, अनरियलिटी नहीं होगा। अनरियलिटी आप कह सकते हैं, अनरियलिटी भी आपका गलत नहीं है। रियलिटी में आपने अनरियलिटी मीन्स होता क्या, पहले ये बताइए। सर अनरियलिटी यानी कल्पना, यानी रियलिटी का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ड्रीम, अनरियलिटी। अभी शानिका ने भी एक कोई क्वेश्चन कुछ वर्ड्स लिख के भेजा है, लेट मी चेक। इन्होंने क्या लिख के भेजा? ये FLCCE, हाँ, इमेजिनेशन। स्पेलिंग थोड़ा गलत है। इमेजिनेशन है ड्रामेटिक, ड्रामेटिक नहीं, लेकिन इमेजिनेशन हो जाएगा सब मिला के। द अपोजिट ऑफ रियलिटी वुड बी द ड्रीम या अनरियलिटी। इट इज द अनरियलिटी। एक ये काल्पनिक है, रियलिटी मतलब वास्तविकता, और फिर जो वास्तविकता है उसका जो अपोजिट, उसका उल्टा होगा, वो कल्पना वाले यानी काल्पनिक होगा। अब ना इनएडिबल, सर इडिबल। एडिबल। इडिबल। आपके बुक में ही सर एडिबल। आउट ऑफ 3000 ओनली 200 fruits वर eatable। इडिबल। तो दैट मीन्स कि इसी में आपको प्रीफिक्स in यूज करके इसका अपोजिट बनाया गया। तो अगर आपको, लेकिन इसका मुझे कोई इसका सिनोनिम बताइए। इनएडिबल का जो अपोजिट होगा एडिबल होगा, तो एडिबल का कोई सिनोनिम। सर इस अनयूजफुल। नहीं, सिनोनिम क्या हुआ? सॉरी सर ईटेबल।
eatable, Eatable. बेटा ईडेबल का Sir, अपोजिट, eatable. ईटेबल का सिनोनिम आपका होगा, ईडेबल का जो सिनोनिम होगा ईटेबल होगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ इनएडिबल का सिनोनिम क्या होगा? sir, unuseful to eat, अनईटेबल। ठीक है, सही है, सही है। Yes, sir. इनएडिबल का अपोजिट जो होगा ईडेबल या फिर ईटेबल, दोनों हो सकता है। इट इज ऑन यू दैट की व्हाट यू वांट टू राइट, Yes, sir. क्योंकि इनएडिबल और अनईटेबल बोथ आर द सिनोनिम्स, दोनों का मतलब ये होता है कि जो खाने योग्य ना हो। yes sir, नाउ देयर इज अ पैराग्राफ, दिस इज अबाउट द अमेज़न रिवर। व्हाट यू ऑल नीड टू डू, आप सभी को जो ये बोल्ड में है इनको आपको सिनोनिम वर्ड्स आपको लिखने हैं। यहाँ पे इसी सेम पैराग्राफ को यहाँ पे लिखा गया है, कुछ आपको यहाँ पे हिंट भी दे दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वर्ड यूज होगा टू फिल दीज ब्लैंक्स। यू ऑल नीड टू डू दिस वन बाय योरसेल्फ। कर ले जाएंगे? yes Yes, sir, sir. अमेज़न रिवर, Yes, sir. अब यहाँ पे लिखा है अमेज़न रिवर इज एन एक्साइटिंग लोकेशन, तो एक्साइटिंग का सिनोनिम यहाँ पे क्या लिखे? द अमेज़न इज अ एक्साइटिंग लोकेशन के जगह पे एक्साइट क्या लिख दे? डिपेंड लोकेशन, डेंस sir, लोकेशन, thrilling, sir, thrilling, Trialing. Yes, sir. Thrilling. ट्रायलिंग नहीं है, ये थ्रिलिंग है। थ्रिल होता है ना, Yes, sir. बहुत अच्छा थ्रिल था। इट्स नॉट अ थ्रिलिंग, इट्स अ थ्रिलिंग। ठीक है, द अमेज़न इज अ Yes. थ्रिलिंग लोकेशन फॉर एन एडवेंचर एक्सपीडिशन। इट इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। इट इज, वहां पे था लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड राइट एट द इक्वेटर। Sir, it's Situated. situated. वेरी गुड, इट इज सिचुएटेड एट द राइट एट द इक्वेटर। द अमेज़न इज सराउंडेड बाय अ, वहां पे क्या था? Sir, dance, sir. dance Dance. मतलब भी आपका थिक का ही बिल्कुल सिमिलर मीनिंग रहता है। 3 और बचे इसी तरीके से, वो भी करना, कर ले जाएंगे, इजी है। Yes, sir. नेक्स्ट वन, सेलेक्ट एनी 5 वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। यू ऑल हैव टू फाइंड आउट द 5 वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, जिसका आपके जो स्टोरी आपने पढ़ा या पोएम पढ़ा, दोनों में से कुछ भी। पोएम अभी तक जितने भी पोएम पढ़े हैं, किन्हीं में से आप 5 वर्ड्स खोजिए। उन 5 वर्ड्स का यू ऑल हैव टू राइट द सिनोनिम एंड एंटोनिम, दोनों लिखना है। ठीक है, yes sir, अगर आपको Yes, ना sir. मिले तो आप डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हैं, बट यू ऑल नीड टू राइट द 5 वर्ड्स along with their, उसी सेम वर्ड्स का आप सिनोनिम भी लिखिएगा, उसी सेम वर्ड्स का आप एंटोनिम भी लिखिएगा। ओके, Yes, sir. yes sir, नाउ कम टू द बुक सी। बुक सी में देखते हैं क्या है। बुक सी वाला भी आप लोग कर ले जाएंगे या कुछ है? सर अभी बुक सी में रीडिंग जंक्शन भी बचा हुआ है। बुक सी में रीडिंग जंक्शन में, Yes, sir. Yes, Sir, sir. reading. अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, ओनली 4 मिनट इज रिमेनिंग। चलो इसको भी कर दे, उसी दिन बताना चाहिए था आप लोग को। चलो वोकैबुलरी अभी डिस्कस कर रहे हैं, वोकैब इसको फाइनल करते हैं, रीडिंग एक्शन भी अभी कर लेंगे, समय में रहेगा तो। राइट अ सिनोनिम एंड एंटोनिम फॉर ईच ऑफ दीज वर्ड्स। ब्रेव का आपको सिनोनिम लिखना है, एंटोनिम लिखना है। ब्रेव मींस होता क्या है? Bahadur. सर बहादुर, तो ब्रेव का सिनोनिम कौन, कितने लोग को पता है? ब्रेव का सिनोनिम बहादुर का बताइए अनुप्रिया। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग Yes, मतलब sir. मजबूत होता है, ब्रेव मतलब बहादुर होता है। बहादुर और स्ट्रॉन्ग में अंतर है। और किसी को आता है ब्रेव का सिनोनिम? सर अनस्केयर्ड, इसका मतलब क्या होता है मुझे बताइए। सर जो ना डरे, जो ना डरे, तो जो ना डरे उससे बहादुर कहते हैं। तुम्हारा कहने का मतलब ये है। यस सर, वेरी, हाँ, करेजियस थोड़ा सा मिल रहा है, कह सकते हैं। करेजियस वुड बी द करेक्ट वर्ड। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ब्रेव? सभी Sir, देखो, जो बहादुर होता है वो डरता नहीं है। वहां पे अमन ने बताया था एक आंसर, क्या बताया था? सर Aniscared. अनस्केयर्ड, देखो, अनस्कैर्ड नहीं, आप कह सकते हैं फियरलेस। ब्रेव का जो सिनोनिम यस sir. सर, फियरलेस होगा, फियरलेस होगा।
और उसी का सर, opposite आप यहाँ पे कर दीजिएगा, ठीक है। डेंजर का अपोजिट या डेंजर का रिस्क, डेंजर का सिनोनिम बता दीजिए। डेंजर का डेंजर यानी यहाँ पे डेंजर है, यहाँ पे रिस्क है, कहते हैं। यस सर, Yes, सर sir, रिस्क। risk. ये सब मैं Sir, risk. सारा नहीं बता दूंगा तो आप लोग क्या करेंगे? इट्स वेरी सिंपल। सिंपल का क्या होगा? डेंजर रिस्क Simple एंड है। Sir, sir, क्वेश्चन पेपर आपको इस सिंपल मिल जाएगा। सर कॉमन एंड एंटोनिम्स यूनिक। सिंपल का क्या होगा सिनोनिम? सर कॉमन यूनिक, कॉमन, एंटोनिम यूनिक होगा। एंड सर एंटोनिम्स यूनिक। Yes, sir, एंटोनिम यूनिक। चलो ठीक है। कॉमन देखो, कॉमन आपका ये सर नॉर्मल। कॉमन मतलब जो सब में हो, दोनों का मीनिंग सिंपल मतलब भी साधारण होता है, कॉमन मतलब भी साधारण होता है। सर नॉर्मल। ये समझिए, सर, normal। सभी लोग शांत होइए। सिंपल मतलब भी साधारण डिक्शनरी में देखेंगे, कॉमन मतलब भी साधारण देखेंगे, लेकिन दोनों का अलग अलग मतलब है। सिंपल मतलब साधारण मतलब सामान्य, लेकिन कॉमन मतलब सामान्य नहीं होता है। कॉमन मतलब जो सब में हो। तो कॉमन का अपोजिट आपका यूनिक तो होगा, लेकिन सिंपल का अपोजिट आपका यूनिक नहीं होगा। सर कॉम्प्लेक्स। डिफिकल्ट हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। यस सर। तो आप यूनिक मतलब अकेला, अनोखा, सिर्फ अकेला जो हो। तो यूनिक का अपोजिट आपका वहां पे Yes, कॉमन हो सकते हैं कई सारे। कूल का सिनोनिम एंटोनिम आप लोग लिखिएगा। सर्कल द सिनोनिम एंड एंटोनिम इन द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको यहाँ पे सोनल Yes, इज sir. नॉट ओनली द इंटेलिजेंट, शी आल्सो वर्क्स क्विकली, क्लेवर, यूनिक, डम, फास्ट, स्टडी स्लोली। व्हाट यू हैव टू डू, सर्कल द सिनोनिम एंड द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। इंटेलिजेंट के जो सिनोनिम या एंटोनिम है, वर्ड्स इसमें है, तो उसको आपको क्या करना है, सर्कल करना है। इंटेलिजेंट के क्विकली के, इंटेलिजेंट का आपका सिनोनिम या एंटोनिम क्या है? क्लेवर एंड यूनिक, डम, फास्ट, स्टडी स्लोली। क्या है? सर क्विकली। Sir, सर क्विकली। क्लीवर, इंटेलिजेंट का क्या? इंटेलिजेंट का, क्लीवर, इंटेलिजेंट मतलब सर क्विकली सर। इसका एंटोनिम क्या होगा? फास्ट, एक एक करके बताना। इंटेलिजेंट का सिनोनिम आपका ये हो गया, एंटोनिम क्या होगा? सर फास्ट। sir, slow, आप लोग बता नहीं पा रहे हैं। सर स्लोली। sir, slowly. अब क्विकली का क्या होगा? क्विकली का स्लोली होगा।